ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछो। हम लोग क्रॉस मैच करते हैं ना। बोसे तुम्हें तो इंटरव्यूअर। Name any 3 differences between the static and the dynamic routing. Static dynamic differences. Static routing mainly administrator manually create hoy, and dynamic routing is routed protocol. Routing protocol. Example. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन निशांत पूछो। What is the role of routing? Role of routing मतलब function of routing. So why we are creating routing? What are the benefits of routing? वो तो routing table पूछा। नहीं, तुम तो routing table के बारे में पूछे थे, वो routing के बारे में पूछ रहा है। Routing mainly used transfer the packets from different network or among the different networks. আনসারটা পুরো কমপ্লিট করছো না কেন? তোমাদের তো টপিকটা পুরনো টপিক, তাতে যদি এত বেশি আটকে যাও তাহলে তো মুশকিল ব্যাপার, তাই না? টপিকটা তুমি নিজে চুজ করেছো, নিজে একটু চুজ করে বলছো, ওখান থেকে তো প্রশ্ন করা হচ্ছে, বাইরে তো প্রশ্ন করা হচ্ছে না। পড়াশোনা করছো না কিচ্ছু, কি করছো আমি বুঝতে পারছি না। একটু পড়াশোনা করো ভালো করে, তোমাদের আর বেশি দিন নেই। তোমাদেরকে সুদীপ্তা ম্যাডাম কিছু বলেছে ক্লাসের পরে এফএসপি বা কিছু একটা 356 के नहीं बोला है कुछ? हैं? एफएससी मतलब होता है फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम। रिवाइज हो जाएगा सारा टॉपिक, जो हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चंस है जो आता है वो सारा सब प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, जॉब के लिए जाएंगे तो नीचे ये प्रिपरेशन। हाँ, नेक्स्ट कौन आएगा? हाँ, रोहित। স্যার বলছি আমাদের যে থার্ড মডিউলের যে প্রজেক্টটা দিয়েছে না दे दिए স্যার, हैं? दे दो पहले। স্যার বলছি আমাদের যে থার্ড মডিউলে প্রজেক্ট করতে দিয়েছে ওটা কিভাবে করতে হবে, এটা ওয়্যারলেস এটা কিভাবে দেখা? थर्ड मॉड्यूल प्रोजेक्ट হ্যাঁ की दिएছে ওয়্যারলেস রাউটার। अरे बाबा वो तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। দ্যাট ইজ সিনারিও, ধরুন একটা সিনারিও তোমাকে দিয়ে দিল যে দ্যাট ইজ অফিস হ্যাজ সাম সিস্টেমস, দ্য সিস্টেম হ্যাজ only wireless adapter, so I want to provide the internet to the systems, so how we like configure the network, so for that we need a wireless router. Wireless router, company name is D-Link or XYZ যাই হোক, so we have to configure this wireless router. ওইটা কি মানে পুরো প্র্যাকটিক্যাল স্টেপস আছে, প্র্যাকটিক্যালি স্টেপ ওয়াইজ লিখে আসতে হবে তাই তো? वो दिया 10 रुपए दिया? हाँ सर दिया। तो तुम रेडी नहीं हो? कितना हुआ उसका? आज हो गया 60 हो जाएगा। आज 60 हो जाएगा। टोटल कितना है हमारा? टोटल पहले का 40 होगा। नहीं, टोटल कितना अमाउंट हुआ है? 290। 290 में इसका 70 है। आज 60। तो टीम का विराट कोहली तो यही है, ज्यादा रन बनाने वाला यही है। मैन ऑफ द मैच। बोलबे तो रूपम गुरे का मैं लिख दिया यहाँ पे, वापस 10 रुपया। तो इन लोगों का प्रेजेंटेशन लेने से फायदा ज्यादा है हमारा। तो तावल आपने हमारे पार्टी प्रेजेंटेशन में समोसा पार्टी होगा।
ऐसा देख के लग रहा है पिज्जा पार्टी हो सकता है। ওই টাকাটা দিবি তো वही देश होता है টাকা তো কারো কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না, টাকা सर নিজেই आपको দিচ্ছে। पता है जो दिया मतलब ड्यू है আমরা দিচ্ছি না। দিচ্ছেন সবার থেকে আমার পরে দিয়ে দিচ্ছেন। না রে বাবা, वही ধরো তোমার আজকে প্রেজেন্টেশন আছে, তুমি বললে যে আমি রেডি না, আমি দেবো না, তো তার তার তো কিছু পানিশমেন্ট আছে, সেই পানিশমেন্টটা হচ্ছে सर पैसा डबल हो जाएगा अगर आप फाइन बढ़ा दें, मतलब 3 बार से ज्यादा, मतलब 10 रुपए तो अब 20 रुपए। নেই। सजाना तुम्हारा इतना भी नहीं। देखो, मेरा कॉपी के लिए हुआ है, तीसरी बार होने जो वाला है मुर्गी अब नहीं मेरा इनकम्प्लीट है। सोने का अंडा देता है ना, धीरे उस मुर्गी को नहीं काट। हाँ सही ये बोला। बात एकदम से ज्यादा लालच का फल बहुत ये लो संतुष्ट रहना सीखना चाहिए यही सीन था। हाँ चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग का 350 का प्रेजेंटेशन होगा, हाँ है ना। 356 से बहुत सारा हो गया है। ये सुनता হ্যাঁ? তমাল বললেন এ তোমালের ছিল, তোমাল হ্যালো, আমি তো ভুলেই গেলাম। তোমাল কোন কোন ব্যাচ? আমাদের তোমাদের ব্যাচে তো। এই তোমাল চলো, তোমার আছে তো। हमारा प्रेजेंटेशन তোমাল তোমাদের ব্যাচে তো। তোমাল চলো স্টার্ट करो। इधर है, दिखाई नहीं दे। তুমিও ফাইন দেবে? দিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও। তুমি এর আগেও পাঠিয়েছিলে তো? एक बार এর আগেও পাঠিয়েছিলে না? बहुत लॉन्ग टाइम के बाद तोमर भेजेगा पैसा শনিবারটা তো হয়। হুম তোমাল तोमर 5 नंबर पे और आ जाएगा ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির 1 তারিখে তোমার হয়েছিল, আজকে মার্চের 11 তারিখ হচ্ছে, তাতেও তুমি ফাইন দিচ্ছ তাই তো? তুমি একটাও প্রেজেন্টেশন কিন্তু দাওনি এখন। হ্যাঁ কিছু বলছো? বলছি স্যার নেক্সট দিন আমি দেবো। নেক্সট দিন তুমি দেবে? হ্যাঁ ঠিক আছে, দিয়ে দেবে। তোমার তাহলে পাঠিয়ে দাও রুদ্রকে। ঠিক আছে। So now let's start the today's class. सब पे अच्छा राइटिंग पैड টা কে নিয়ে নেবে? এই রাইটিং প্যাডটা দাও না। हाँ अभी सर ज्वाइन कर सकते हैं सर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं तुम्हारे से ये तुम सही जगह बैठो, यहाँ पे अच्छा दिखेगा। अच्छा प्रीवियस डे हम लोग क्या सीखे थे? VPN है ना? So सर हम लोग का प्रीवियस क्लास हुआ था सर ओपन VPN। हाँ ओपन VPN तो एप्लीकेशन का नाम है, बट प्रैक्टिकली वी हैव डन VPN। यस सर। सो प्रीवियस क्लास से किसी का डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चंस है? सर नहीं सर प्रीवियस क्लास Any doubts, any question from previous class? So we have done VPN है ना, हम लोग VPN प्रीवियस Yes, sir. सेशन में किए थे, और VPN में हम लोग ये किए थे, जो यूज किए थे वो एप्लीकेशन दैट इज ओपन VPN। और ये VPN का कंसेप्ट क्या था? VPN का कंसेप्ट ऐसा था कि हाँ कि मैं अपना सर्वर को के रुद्रो ना कि मेट्रो में कौन है? अभी मैंने हाँ। तो ये अगर मेरा प्राइवेट नेटवर्क में कोई सर्वर है, मशीन है,
इसको मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ अपना पब्लिक नेटवर्क से, मतलब इंटरनेट के थ्रू से मैं कनेक्टेड हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक देयर इज इंटरनेट एंड थ्रू इंटरनेट आई एम कनेक्टेड, ओके। सो इस इंटरनेट के थ्रू ये कैसा क्यों हो रहा है? थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड है हम, और इस इंटरनेट से मेरा ये सिस्टम, तो थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड है हम, हाँ? और ये मेरा मशीन है, और जिस मशीन से मैं एक्चुअली एक्सेस करना चाहता हूँ इस सर्वर को, ये सिस्टम है, मेरा इंटरनेट एक्सेस है। सो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ सर्वर को। क्या हो गया इसको? ओके, सो ये सर्वर मेरा AWS में है, AWS अकाउंट में है, ओके। AWS का मेरा अकाउंट है, इसमें मेरा रीजन है, इस रीजन के अंदर ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, इट्स माय प्राइवेट सबनेट। क्या हो रहा है? ये प्राइवेट सबनेट में पड़ा हुआ है सर्वर, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ से बैठ के। तो क्या लगता है कैसे एक्सेस करेंगे? थ्रू VPN। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है एक्सेस करने का, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, वी हैव दैट, बट मैं चाहता हूँ सिक्योरली एक्सेस करना, विद सिक्योरिटी, विद पावरफुल सिक्योरिटी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग VPN। सो VPN में मैं जो एप्लीकेशन यूज किया था प्रीवियस क्लास में, दैट इज ओपन VPN, ओके। और इस ओपन VPN के लिए मैं क्या क्रिएट किया था? आई एम क्रिएटिंग अ पब्लिक सबनेट। मैं क्या बनाया था? यहाँ पे एक पब्लिक सबनेट बनाया था, और इस पब्लिक सबनेट के अंदर में क्या क्रिएट किया था? ज़्यादा ही कुछ अलग हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बनाया था VPN सर्वर, इसके अंदर में बनाया था क्या? VPN सर्वर, और इस VPN सर्वर के थ्रू से मैं कनेक्ट कर पाया था इस मशीन को। ये मशीन मेरा है समझ लो कोलकाता में, और ये सर्वर मेरा समझ लो US में है। तो ये सिस्टम के थ्रू से, ये सिस्टम से ही मैं एक्सेस किया था इसको। कैसे? इस मशीन को मैं क्रिएट किया था क्या? VPN क्लाइंट। मैं क्या बनाया था इसको? आप याद करो, अगर आप लोग प्रैक्टिकल किए हो तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ा। इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप रिक्वेस्ट भेजते। तो ये VPN क्लाइंट, इस VPN क्लाइंट से हम लोग पहले क्या किए थे? रिक्वेस्ट किए थे किसको? सबसे पहले रिक्वेस्ट किए थे हम अपना VPN सर्वर को। सो VPN सर्वर से कनेक्ट होने के बाद मेरा कनेक्टिविटी क्रिएट हुआ, देन मैं रिमोट एक्सेस किया, मैं RDP के थ्रू से फिर रिमोट एक्सेस किया मशीन को, और मुझे एक्सेस मिल गया। सो ये प्रैक्टिकल था। किसका हो गया था प्रैक्टिकल? और किसका हुआ था? रुबीना नहीं है, उसका रुबीना का हो गया। और किसी का प्रैक्टिकल हुआ था क्या? मैंने किया था सर, मैंने किया था सर, लेकिन VPN कॉन्फ़िगरेशन में फेल हो रहा था सर। अच्छा, तुम लोग चले गए? जब तक नहीं हो रहा तब तक लगे रहना चाहिए। लैब तो खाली था, लोग तो कल काफी देर तक था वहाँ पे लैब। 2 बार कर लिए। फर्स्ट टाइम आपका वीडियो निकल गई थी, सेकंड टाइम তোমাদের হয়েছিল? তোমার তো অ্যাকাউন্ট করতে পারবে? তোমার অ্যাকাউন্ট আছে? অ্যাকাউন্ট বানাওনি? এত টাকা আছে অ্যাকাউন্ট বানাচ্ছ? স্যার ওইটা ভিসাটা ওইটা নেই তো,
तो वो एक है हेलो ऐप तो है डेविड का ওই এয়ারটেল অ্যাপটা তো পাচ্ছি না ট্রাই করছি तो ये प्रैक्टिकल कर लेना VPN का ओपन VPN काफ़ी आसान प्रैक्टिकल है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है झमेला इसमें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये मेरे को सिक्योर कनेक्टिविटी करवाता है ओवर द पब्लिक नेटवर्क के थ्रू से मेरा कनेक्टिविटी होता है, और वो एक टनल क्रिएट करता है जिस टनल के थ्रू से मेरा कम्युनिकेशन होता है, लाइक दैट, है ना, इस तरह से कनेक्टिविटी क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आज चलने वाले हैं VPC हमारा खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया VPC में, एंड पॉइंट, जिसके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी मैं कुछ बोलूँगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, काफ़ी चीज़ें उसमें है ऐसा। सो पहले हम लोग कर लेते हैं स्टोरेज। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टोरेज। ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो AWS स्टोरेज, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसको यूज करके फायदा नहीं है, मैं नोटपैड ही ओपन करूँ। सो स्टोरेज में आते हैं पहले। ये मेरा स्टोरेज का फाइल है। तो स्टोरेज इन AWS में स्टोरेज क्या होता है, या किसी भी AWS छोड़ दो, नॉर्मल स्टोरेज मतलब क्या समझते हैं? स्टोरेज मतलब स्टोर करना। स्टोरेज मतलब होता है कुछ कहीं पे कुछ स्टोर कर रहे हैं, जैसे स्टोर रूम में स्टोर होता है, इस तरह से सिस्टम में मैं अगर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस क्या होता है सिस्टम में? हार्ड डिस्क होता है। सो नॉर्मली हम लोग डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, जैसे सिस्टम आप लोग यूज़ करते होगे, तो सिस्टम यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, फोन्स यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आप अपना डेटा, अपना फोटो, अपना वीडियो, अपना रील्स बनाते हो, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हो। कहाँ पे स्टोर होता है? HDD हार्ड डिस्क में। और जो फोन में हार्ड डिस्क फोन में कहाँ होता है? गैलरी, मतलब तो गैलरी तो एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव, मतलब नेट नहीं रहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाओगे फोटो। SD कार्ड में होता है या रोम में होता है? जो अभी इनबिल्ट Yes, sir, ROM। तो यहाँ पे स्टोर होता है डेटा। एब्सेंट हो गया तुम्हारा? कुछ करने का नहीं है हमारे लिए। अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:21। एब्सेंट ही होगा। हाँ, आपका भी एब्सेंट। आपका नाम क्या? सर इसका भी ड्यू है सर, ये हमको हर बार बोलता है दे देगा। ए दो पहले देने के बाद अंदर जाओ। किसका ड्यू है? ऋतिक का। आयुष को 500। आयुष का नहीं, यहाँ पे बैठो ना, यहाँ पे। बीच में बैठो। ए ऋतिक भेजो। अंदर बैठ। कितना बार तुम उससे मांगे थे? हाँ दीदी की आता सही बात है, वो हमको दे वो देगा। तो 2 बार क्लास ही आया है। हाँ, चलो क्लास वही तो दूसरा ये- पूरा महीने में 2 सेकंड क्लासेस आया थी। स्टार्टिंग में उसका फाइन हुआ है। हाँ? स्टार्टिंग सेकंड वीक में उसका फाइन हुआ है। कितना सारा क्लास किए ऋतिक? 2-3 क्लास किए होंगे टोटल अभी तक AWS में। नहीं सर, क्लास के अटेंडेंस नहीं मिला। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तुम वो दे दो, फाइन दे दो पहले। नहीं, वो कैश देगा। हाँ, तो हम लोग स्टोरेज के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, या फिर SSD यूज़ करते हैं, या टेप ड्राइव। बड़े बड़े कंपनी में टेप ड्राइव यूज़ होता है बैकअप के लिए, डेटा बैकअप।
छोटा मोटा डेटा रखने के लिए पेन ड्राइव, टेम्पोररी डेटा रखने के लिए पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में हम लोग CD DVD यूज़ करते थे। उससे पहले के ज़माने में फ्लॉपी ड्राइव यूज़ करते थे। तो ये सब डिवाइस किसके लिए है? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो AWS जो है, AWS Amazon सर्विस जो है, वो सिर्फ मशीन नहीं, मुझे स्टोरेज भी देता है। मैं अगर स्टोरेज यूज़ करना है, जैसे गूगल ड्राइव, सो ड्राइव इज गिविंग मी द स्टोरेज ओनली, 15 GB का स्टोरेज मिलता है फ्री अकाउंट में। इस तरह से AWS में भी मुझे स्टोरेज मिलता है, डिफरेंट टाइप्स का स्टोरेज है यहाँ। ठीक है, तो AWS में डेटा आपको ही रखोगे तो AWS का स्टोरेज चाहिए आपको। बट AWS का स्टोरेज डिफरेंट टाइप्स का है, डिफरेंट टाइप का स्टोरेज है। एज पर योर रिक्वायरमेंट दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। VPC के बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टोरेज। और इसमें स्टोरेज के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है S3, जिसके बारे में हम लोग S3 तीन बार S डाल बोलना है। सर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। शुरू में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे। প্রথম ক্লাস এসেছিল না? ছিলাম স্যার, অনেক কটা ক্লাস করেছি। একটা ক্লাস করেছি, দুটো ক্লাস করেছি। সপ্তাহে কি সপ্তাহে দুটো। हाँ? नहीं दिख रहा है? এই অভিজিৎ একটু কথা না। প্রিয়াঙ্কা মেয়ের খবর কি? কি আর বলবো স্যার? তো বন্ধুত্ব কি মিডিয়ে হয়েছে? না তা নয়। কাল জানো কাল কি হয়েছে? আপনাদের রিচার্জের সিমটাই বন্ধ হয়ে গেছে। তো ফোনের বন্ধু তোমার ছিল? তোমার কি ফোনের শুধু বন্ধু ছিল? না এমনিতে তো আমরা তো আলাদা আলাদা জায়গায় থাকি। अरे কতটা দূরে থাকো? वो मेरा घर के बगल में रहती है सर, इसका बगल नहीं रहती। अरे माँ तुम्हारा घर के बगल में रहती है, तो क्या कर रही है अभी? उतना नहीं पता सर। अरे बगल में रहती है, बगल का ऊपर नहीं रखते? क्या? तो जाते थोड़ी नेचुरली, भले जितना भी सामने रहे। जाओ खबर बोल लो, क्या बात है, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, हाल चाल पूछो तब ना। लिख रहे हो? हो गया सर। लिखो। हो गया, लिख चुके सर। अरे वाह। यस सर, डन। सर आप तो बोले ही नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा लिख के बैठे। नहीं लिखो ना, पहले लिख लो तो फिर बताते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज 4 ही लिखना है, 4 है। अभी ये वाला पोर्शन नहीं रहा मतलब है। ये अभी लिख लो। ये अभी हो गया S3 ग्लेशियर, अभी S3 का पार्ट हो गया ये, ठीक है। मतलब S3 के अंदर ही आ गया वो। सर थोड़ा फॉन्ट बढ़ाइए ना। हाँ? हाँ ठीक है सर। ठीक है। सो स्टोरेज टाइप्स में आप देखोगे, टाइप्स ऑफ स्टोरेज अगर देखें AWS में, तो सबसे पहला जो है S3 है। S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। हाँ, यहाँ पे S3 का मतलब ये है कि 3 टाइम्स S। यहाँ पे एक S है, यहाँ पे एक S है, यहाँ पे एक S है, तो ये तीनों S मिलके S3 हुआ। बोल रहा है Clear? SQ बोल गया। हाँ? क्या? ठीक पूछ रहा है जो SQ। So S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। EFS उसके बाद आता है EFS मतलब होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। EBS का मतलब होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और S3 ग्लेशियर एक आता है नेक्स्ट, जिसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है स्नोबॉल। ठीक है, स्नोबॉल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं S3 को। तो S3 का फुल फॉर्म, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, S3 का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। स्टोरेज दो तरह का हो सकता है, ऑब्जेक्ट लेवल हो सकता है या फिर ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है और ऑब्जेक्ट लेवल का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या होता है ब्लॉक लेवल, क्या होता है ऑब्जेक्ट लेवल।
तो पहले थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो हमारे लिए इजी होगा समझना क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, लिखना है S3 को। S3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारा स्टोरेज का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लिखो पहले, अगर लिखने के बाद अगर कोई ऐसा जगह में समझ में ना आए तो बोलना, हम वापस डिस्कस करेंगे उसको। किसकी वजह से आ रहा है? स्पेस नहीं, इसकी वजह से आ रहा है। AWS का जो पेपर होता है उसमें सिलेबस में यही रहता है जो अभी हम कर रहे हैं। हम लोग जो पेपर कर रहे हैं CO3, हाँ, उसमें यही है सिलेबस में। मैं तो बुक भी दिया हूँ, भेजा हूँ तुम लोगों को, हाँ, बुक में PDF है। सर इसका एग्जाम हम लोग को वही पेपर नहीं, उस लेवल का नहीं होगा एग्जाम, जिस लेवल का ग्लोबल एग्जाम होता है। हाँ, हम ग्लोबल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उसमें यही सिलेबस रहता है ना। हाँ, सर ये बहुत अच्छा है, ज्यादा Amazon में वैकेंसी इसी AWS इसी बेस की पर ही आता है। उस दिन हम देख रहे थे Amazon में जॉब का नहीं, इंडिया में अभी अमेज़न का ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया में डेटा सेंटर भी काफ़ी सारे ओपन हो गया ना, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है अमेज़न को मैन पावर का, इसका पर नॉलेज उसमें है। एक्सपीरियंस ही, उसमें फ्रेशर नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर हाँ सर, फ्रेशर कहाँ ले रहे तो हैं? हमारे जितने का स्टूडेंट ही है फ्रेशर, फ्रेशर ही था तो। दोनों स्टूडेंट यहाँ से जो गया है मुंबई का डेटा सेंटर में, हाँ, तो दोनों तो लोग डेटा सेंटर में हैं सर। हाँ, तो अमेज़न का तो यहाँ पे मुंबई में डेटा सेंटर ही है ना, रीजन है ना, मुंबई रीजन है ना। अभी हैदराबाद में ये नहीं पता था सर कि डेटा सेंटर में। हैदराबाद में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आएगा। अभी कोलकाता में तो RPA जाना है। RPA 108 एबिलिटी जोन 108 बढ़ के, हाँ सर, एबिलिटी जोन बढ़ चुका है। कहाँ पे? टोटल है एबिलिटी जोन। Every region is different thing, region is different. रीजन 34 हो गया, डन। No sir. रह गए तो, अरे वाह, सर राइटिंग अभी एग्जाम देके आई ना, एग्जाम देके आई, अभी इनका भी हाथ भी अच्छा चलेगा। वो तो लिखे चलो एग्जाम में, एग्जाम में लिखे लेखो नहीं, মানে দেখে দেখে দেখো তো এইভাবেই এক্সাম হচ্ছে, বই দিয়ে দিচ্ছে দেখে দেখে লেখো, হচ্ছে না? হ্যাঁ হচ্ছে, করছে, করে মাঝে কি জন্য জিজ্ঞেস করে কি দরকার? তোমাদের কলেজে হয় না? মাথা খারাপ না, পেপার আমার ক্যান্সেল করে ইচ্ছে হচ্ছে না। हो गया, लिख लिए? लास्ट है सर, लास्ट। लास्ट है, सर लास्ट थोड़ा नीचे चलते हैं ना, काफी सारा पॉइंट है इसमें। हाँ হ্যাঁ, অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট বানাবে কি করে না লিখলে? অ্যাসাইনমেন্ট বানাবে কি করে? তোমাকে তো থিওরিও জানতে হবে।
कितना भारा है। यस फिर और region specific दो बार कोई लिखा है तो दो बार मत लिखो, एक ही बार लिखो। रफ हो जाएगा फिर अपने यहाँ। एजेड मतलब एबिलिटी जोन। अच्छा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आप एजेड का फुल फॉर्म है एबिलिटी जोन। लास्ट यही है 20 नंबर ऊपर करेंगे। सर 20 तक पूरा ऊपर कर दीजिए। 7 लिख लिए। 17 हो गया 7। सर सर हाँ पापा है ना? हाँ ठीक है बैठा, बैठने के लिए बोलो ना। ऑफिस है मैडम है उधर? हाँ होगी। मैडम को बोलो एक बार, मैडम बात कर लेंगी। तो बोल रहे ऑनलाइन में मम्मी से बात करने से नहीं होगा सर? लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। सर लेके कैसे आएंगे सर, ऑफिस भी तो है सर। ठीक है सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा 17 तक हो जाए। सर आई 20 तक पूरा कर दीजिए। सर 10 तक रहेंगे। 10 10
ठीक से लिखा भी नहीं है। कागज चार्ज काट
महाराष्ट्र में लगा है। ऐसे ही भाग है, ऐसे ही छोड़ेगा। अबे उसका सुरजीत का सबसे लकीस्ट जगह है भाई, उन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता, नाइट ड्यूटी है, जाता है सुरजीत का क्या मूवी अपलोड करता है, बस बैठ के मूवी देखता है, और ऋषि का भी ऐसा है, रात को एनिमे देखता है, बस सुबह को आ जाता है, उन लोग का कुछ है ही नहीं होता, उन लोग का एक्सपीरियंस ही नहीं पड़ता, इसलिए वो लोग कुछ करते हैं। सुरजीत साइन करने के लिए आ गया था उधर का जेटी में जाके उड़ीसा का उसका ऑफिस का सामने तू बाहर निकल ज़्यादा ही में जाओ बाहर कि जब HR तक गए थे सैलरी डिस्कशन मैंने पता नहीं क्यों बस रिजेक्ट इसलिए तो ये उसको जब इंटरव्यू क्रैक कर लिया उनसे HR बात करने से मुझे रिजेक्ट किया मैंने लेकिन मुझे नहीं करना है फैमिली से मैंने मेरा पापा को बोला मॉड्यूल जाएगी उसके बाद बाहर भेजना तो भेजिए मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा हो मतलब मान के जैसे ऋषि लोग का नाइट शिफ्ट है वो लोग कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर से बात करते मैं बाहर जाऊँगा रिमोटली एक्सेस कर पाऊँगा इन हैंड मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग का तो नॉलेज है क्योंकि वो लोग बैक काम करते हैं वो तो है मेरा नहीं है तो फिर मैंने मना कर दिया जीत
अबे हर एक कंपनी में तुम्हारा काम पूरे 25 से 2 वीक सेलिब्रेट है राहुल किया पहले सेलिब्रेट या पहले तुमने 10 लिख लिए? ठीक है यस सर, डन डन। मतलब यही टॉपिक डिस्कस किए, कुछ और डिस्कस करें? इंडिया में मैच डिस्कस करें। अच्छा तो जरा सा एक बार आप लोग पढ़ लो जो भी आप लिखे हो, नोट किए हो, बिकॉज समझना भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ लिखना नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट जरा पढ़ो, वो लास्ट वाला जो है 10 रुपया वो पड़ेगा, क्या नाम है? रोहित। फर्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म ना, फुल फॉर्म तो समझ जाने, 2 नंबर। S3 it is an object level storage. हाँ, सो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है ये। थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट लेवल क्या होता है। ऑब्जेक्ट लेवल मतलब होता है कि आपका जो फाइल है, आपका जैसे वो जैसे आपका 4 MB का फाइल है, तो 4 MB का फाइल को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर देता, वो 4 MB का फाइल को छोटा छोटा इवन साइज में डिवाइड कर देता है, सेम साइज में ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, उसके बाद वो सेव होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल स्टोरेज। क्लियर? अच्छा, ब्लॉक लेवल स्टोरेज है ना ये? ऑब्जेक्ट लेवल। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल है। ओ, तो ऑब्जेक्ट लेवल तो उल्टा हो गया। ऑब्जेक्ट लेवल क्या है? जो फाइल है उसी फाइल को सेव कर देगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा उसके, वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। जो तो MB होगा ना करो। अगर 5 GB का फाइल है तो 5 GB का फाइल सेव हो जाएगा। ब्लॉक में क्या होता था? ब्लॉक होता था, जैसे EBS से ब्लॉक लेवल। बट ये क्या है? क्या एक पर्टिकुलर साइज का एक ब्लॉक बना के स्टोर करता है, सेम सबका साइज सेम ही होता है। और इसमें एज इट इज जैसा ऑब्जेक्ट है उस तरह से वो ट्रीट करेगा ऑब्जेक्ट को। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है ये? फोन। और ये एक ऑब्जेक्ट है पेन। तो वो ऑब्जेक्ट को पेन के हिसाब से ही सेव करेगा, इस ऑब्जेक्ट को फोन के हिसाब से ही सेव करेगा। ब्लॉक लेवल में बोथ आर रॉ डेटा बन जाएगा। ब्लॉक लेवल में क्या होगा? रॉ हो जाएगा डेटा। आप ब्लॉक को देख के नहीं समझता कि वो मोबाइल है और ये, क्योंकि टुकड़ा हो गया ना वो। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज करता है, इसलिए S3 को हम लोग स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं। स्टोरिंग मतलब हर तरह का फाइल स्टोर कर सकते हैं इसमें, वो वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, PDF फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, क्योंकि हर फाइल को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो डेटा को सेव करता है। एज इट इज सेव। यस। 3 और 4 नहीं, पीछे से स्टार्ट हो रहा है। 3 और 4 एक साथ ही पढ़ो ना। Any object can be stored here, or it can be accessed from anywhere. तो 3 माने की और 4 माने की। So মানে কোনো object stored হয় এখানে ব্লকে stored হয়। Any object, একটু আগে বলছিলাম that is object, that is object, that is object, everything is object। সব object গুলো একই জায়গায় सब रकमेर ऑब्जेक्ट सेव एखाने स्टोर करा है। हर तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, हर तरह का फाइल आप स्टोर कर सकते हो, वो किसी तरह का भी फाइल हो। मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, PDF फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, एवरीथिंग यू कैन स्टोर हियर। किसी भी बकेट में आप स्टोर कर सकते हो। नंबर 4 पॉइंट माने সব object access হয় এখানে। एनीवेयर माने की एनीवेयर मतलब कहीं से भी आप इस ऑब्जेक्ट को, इस फाइल को दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना? दुनिया में कहीं से भी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो अगर S3 में है तो। क्लियर? जैसे मेरा फाइल इस मशीन में है, इस मशीन का फाइल को मैं दुनिया में कहीं से एक्सेस कर सकता हूँ क्या? हाँ, जैसे ये फाइल मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये फाइल का नाम है जॉन। देखो यहाँ पे लिखा है ना जॉन। अभी ये फाइल है ना, ये टेक्स्ट फाइल है, इस फाइल को मैं दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। हेलो,
শুনছো কি বলছি? কি বললাম বলো? एक्सेस करा जाते पारे कि पारे ना? कितने लोग बोल रहे हो कि हाँ कर सकते हैं? करके दिखाओ तो अपने फोन से। रिमोट हम बोले फाइल एक्सेस करने के बाद, सिस्टम एक्सेस करने के बाद हम नहीं बोले। रिमोट एक्सेस तो पूरा सिस्टम ही मिल गया आपको। खाली फाइल सेव करके रखा हुआ है। यही तो डेस्कटॉप में है, ये तो बाबा रे बाबा, ये क्या है? ये इसी मशीन का है, फिजिकल मशीन। एक्सेस होगा क्या? नॉर्मली एक्सेस नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। नो सर, नहीं हो पाएगा। तुम लोग तो हाँ बोल रहे हो। बट S3 में अगर ये अपना हाँ अगर ये सर गूगल ड्राइव में होता तो सबको एक्सेस कर देता। यस, तो यहाँ पे S3 गूगल ड्राइव जैसा ही है। तो S3 में अगर कुछ फाइल आप रखोगे, उसको आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस द फाइल। नंबर 5 रुद्र। Access to others can be customized, so access can be configured, also manage access can be configured. And 6 number, document, file, picture, video, database can be. नहीं नंबर 5 ओनली। Access to others can be customized, मतलब हम others को access भी कर सकते हैं, customize भी कर सकते हैं, और full access लेकर के उसको configure भी कर सकते हैं, manage भी कर सकते हैं। एग्जांपल देके समझा सकते हो? सर जैसे गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव मैंने व्हाट्सएप में भेजा हुआ है, सो अगर किसी के पास कोई वीडियो है तो वो उसमें अपलोड कर सकता है। यस, तो वहाँ पे भी आपके पास एक्सेस है, फुल एक्सेस देना है या रीड का एक्सेस देना है या व्यू का एक्सेस देना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी परमिशन सेट कर सकते हो कि आपको क्या एक्सेस देना है। बिकॉज जब आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या परमिशन आप देना चाहते हो और क्या देना है। नॉर्मली किसी भी चीज को मैं जब शेयर करता हूँ पब्लिकली, तो हम लोग रीड ही देते हैं, राइट का एक्सेस नहीं देते हैं। अगर राइट का एक्सेस देंगे तो मेरा डिलीट भी कर सकता है ना, तो इसलिए हम लोग रीड का एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस देने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शंस है। जब भी आप कोई S3 बकेट बनाओगे और शेयर करोगे, तो वहाँ पे परमिशन डालना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या एक्सेस देना है आपको, ये पहले आप पता कर लो। फुल एक्सेस देना है, क्या एक्सेस देना है, ठीक है? तो वो ये ऑप्शंस यहाँ पे है। अच्छा, नंबर 6 सत्या। Documents, files, pictures, videos, databases can be the example of S3 content. यस, तो S3 में किस तरह का फाइल आ सकता है? Documents, files, pictures, videos, and तो हर तरह का फाइल यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट मुस्कान है। This storage is used for internet. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये इसमें जो स्टोरेज है, कर सकते हैं वो इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि S3 को हम लोग यूज करने का जो मकसद है, उसको क्या है? गूगल ड्राइव का यूज करने का मकसद क्या है? गूगल ड्राइव एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे S3 में जो भी आपका डेटा है इंटरनेट के बारे में, और वो एक्सेस करना है आपको, वो किसी से शेयर किए हो या फिर खुद एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको इंटरनेट के थ्रू से जाना है। इंटरनेट के थ्रू से जाना है। आपके पास क्या होगा? लिंक क्रिएट होगा। जैसे गूगल ड्राइव में लिंक क्रिएट होता है, यहाँ पे भी क्या होगा? HTTPS से लिंक क्रिएट होगा। क्लियर फॉर एवरीवन? सो दैट्स व्हाई द लाइन इज देयर। सो द स्टोरेज इज यूज्ड फॉर इंटरनेट। क्लियर? स्टोरेज को आप ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करोगे। ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इस तरह का ब्राउजर। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 पिंकी। It has a simple web service interface for simple storing and retrieving data. It is simple web service. बोलो क्यों? It's very simple. It's very simple to use the S3 bucket बोल रहे हैं, bucket ही यहाँ पे आगे चल के बोलेंगे हम लोग। S3 bucket क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी है, इजियर है। इसका नाम ही क्या है? S3 का फुल फॉर्म क्या है? यस, सो वेरी सिंपल।
So you can use this S3 bucket very easily. और आप इसको जिस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इस तरह से एक्सेस करना भी काफ़ी आसान है. So डेटा रिट्रीव करना हो या फिर आपका डेटा स्टोर करना हो, both are very easy, very simple. Okay. ये रितु, next point. We cannot install OS in S3, मतलब कि S3 में हम OS को इंस्टॉल नहीं कर सकते. हाँ, तो ये स्टोरेज OS के लिए नहीं है. हाँ, OS का फाइल आप रख सकते हो इसमें. ऐसा कुछ नहीं है कि आप OS का इमेज नहीं रख सकते. ISO फाइल इसके अंदर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. लेकिन OS जो बूट होता है वो नहीं होगा. We can't install ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो लिखा है ना. OS बूट नहीं होगा. जैसे हमारा हार्ड डिस्क में OS डालते हैं, बूट होता है सिस्टम, वो ये S3 से नहीं होगा. S3 is not for OS installation. Clear? Number 3. EBS. Number 10. मतलब सर OS इमेज रख सकते हैं ना सर? हाँ, OS इंस्टॉल नहीं कर सकते इसमें. S3 has a distributed data store architecture where objects are inventory stored in multiple locations. এটা সব লোকেশন থেকে অ্যাক্সেস করা যায়. ये थोड़ा सा हाई लेवल का पॉइंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. जैसे अलग अलग रीजन होता है ना, रीजन तो अलग अलग होता है AWS में. जैसे मुंबई रीजन हो गया, वर्जीनिया का रीजन हो गया. तो आपका अगर डेटा है S3 बकेट यहाँ पे आप क्रिएट किए हो, तो आपका मल्टीपल लोकेशन में भी डेटा आप डाल सकते हो. आपको अगर लगता है तो इस तरह का आप कर सकते हो कि मल्टीपल जगह में मेरा S3 बकेट हो, तो वो कर सकते हो. सो मल्टीपल लोकेशन को सपोर्ट करता है S3 बकेट. মানে আমি এখানে অ্যাক্সেস করে রাখলাম, আমি যদি অন্য কোথাও যাই তাহলে আমি সেখানে গিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো না. অ্যাক্সেস না, আমি রাখতে পারি. ইউজ করতে AWS এর অনেকগুলো জায়গায় ডেটা সেন্টার আছে না. ধরো নাও ভারতবর্ষে যে মুম্বাই সেন্টার আছে, মুম্বাই বহুত বড় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, ডেটা সেন্টার পুরো ছাই হয়ে গেল. আমার ডেটা কোথায় ছিল? মুম্বাই ছিল. পাবো আর পাবো না. तो हम यदि चाहे मल्टीपल लोकेशन रखते पारी. डेटा सेंटर मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में भी है, US में, वहाँ पे भी मैं रख दिया. तो वो डेटा तो मेरा एक डेटा सेंटर से उड़ गया, दूसरा डेटा सेंटर से मुझे मिल जाएगा. मल्टीपल लोकेशन में मैं यूज कर सकता हूँ, रख सकता हूँ. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आप ये लिख लो साफ साफ, ये वाला पॉइंट मैं ही ये बोल दे रहा हूँ. ये रीजन स्पेसिफिक है. रीजन स्पेसिफिक का मतलब क्या? आप S3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी एक रीजन में कर रहे हो, मुंबई रीजन में कर रहे हो, तो मुंबई रीजन में ही वो क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली. इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते. लगा कि बाद में कि नहीं मैं इसको चेंज करके लेके जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया, नहीं कर सकते. आपको नए से करना पड़ेगा. हाँ, बैकअप वगैरह के लिए ऑप्शन रखा गया है, बट अब लेकिन पूरा चीज को एक साथ उठा के वहां नहीं डाल सकते. तो रीजन स्पेसिफिक है, जिस रीजन में आप कर रहे हो उसी रीजन में होगा. नेक्स्ट पॉइंट. AWS will never tell in which asset it has stored your S3. माने सर वो कभी नहीं बताएगा कि S3 किस रीजन मतलब किस एबिलिटी जोन के अंदर है. देखो रीजन के अंदर एबिलिटी जोन है, हम लोग पहले भी बात किए थे. रीजन में के अंदर क्या आता है? एबिलिटी जोन्स आता है. जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, वर्जीनिया में 8 एबिलिटी जोन्स है ना, 8 अलग अलग एबिलिटी जोन्स है. तो आपका S3 बकेट तो किसी न किसी जोन में बन रहा है. लेकिन ये आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा जोन में बन रहा है. आपको रीजन पता चलेगा, लेकिन जोन AWS आपको नहीं बताएगा कि कौन सा जोन में क्रिएट हो रहा है. जैसे EC2 जब बनाते थे तो मुझे देता था जोन का ऑप्शन और दिखाता भी था, लेकिन ये आपको नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है ना. जोन जान के क्या होगा, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है उसका. अच्छा, इसके बाद शायोन.
at last 3 copies of data are created for disaster recovery. ডিজাস্টার রিকভারি মানে হচ্ছে ডিজাস্টার কিছু হয়ে গেল বড় রকমের, সুনামি চলে এলো, দেশ পুরো ডুবে ছাই হয়ে গেল, জলে চলে গেল, তাহলে ডেটা কি করে রিকভার করবো? সো দ্যাট ইজ ডিজাস্টার রিকভারি। যদি তাও ডেटा रिकवर করতে পারছি তার মানে আমি डिजास्टर रिकवरी करছি। कुछ बड़ा डिजास्टर होने के बाद भी डेटा रिकवर हो गया। इसलिए AWS में क्या होता है, 3 कॉपी स्टेट होता है कि एक जगह अगर दो जगह भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, 2 रीजन में भी अगर इशू आ जाए तो 3rd रीजन से मुझे डेटा मिल जाए। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল কি করা যাবে? তিনটে জায়গায় চলে এলো মানে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল, তাই না? চায়নাও ডুবে গেল, ইন্ডিয়াও ডুবে গেল, আর ইউএসএ ডুবে গেল, বাঁচলোটা কি? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं पीछे से स्टार्ट किया था ना, Copies of data are not stored in different regions. समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, जोर से बोलो। Mirror copies of data are not stored in different regions. वेरी गुड, बोलो इसका क्या मतलब है? लास्ट में रिकवरी रीजन है, डिफरेंट रीजन ही होगा, रिकवरी नहीं होगा। हाँ, एक रीजन से डाटा दूसरे रीजन में कॉपी नहीं कर सकते। मिरर नहीं कर सकते। मिरर कॉपी मतलब वही हुआ, बैकअप सिस्टम बोलते हैं। अच्छा सिंपल सा ये सब, यहाँ पे एक बात है S3 के बारे में, ये लिमिटेशंस है S3 का थोड़ा सा, कि आप S3 का जो डेटा है उस डेटा को जिस रीजन में बनाए हो उसी रीजन में ही आपको मिरर करना पड़ेगा। अगर आपको मिरर करना है, कॉपी करना है या रखना है बैकअप के हिसाब से, तो उसी रीजन में ही करना पड़ेगा, आप दूसरे किसी रीजन में नहीं कर सकते। हाँ वो अलग बात है, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी और अकाउंट को एक्सेस दे सकते हो, वो हो सकता है, लेकिन उसका मिरर कॉपी दूसरे रीजन में नहीं बन सकता। क्लियर? अच्छा उसके बाद का पॉइंट संजना। Data is stored in S3 buckets. The data stored is known as bucket in AWS. जो डेटा स्टोर होता है वो होता है S3 buckets में, और जो डेटा स्टोर होता है उसी को बकेट बोलते हैं AWS में। हाँ तो S3 bucket एक्चुअली क्या है, डेटा स्टोर है, बट डेटा स्टोर है मतलब मेन फोल्डर है, मेन डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपका सारा डेटा रहेगा। बकेट मतलब क्या बोले, बाल्टी जैसा होता है ना, पानी भरने वाला बाल्टी, तो बाल्टी में हम लोग पानी डालते हैं और वो स्टोर करता है पानी को। इस तरह से यहाँ पे भी बकेट तुम्हारा मेन फोल्डर है, जिस फोल्डर में आपका सारा डेटा स्टोर होगा। अच्छा ये तो इसमें तो एनोटेशन नहीं है। S3 बकेट देखने में ऐसा होता है। बोलो। ऋतिक आप लोगों का गार्डियन क्यों नहीं आ रहे? निशांत आपके पापा क्यों नहीं आ रहे? सर कॉल किए मानो তোমার मायूष যেহেতু বাবার কাজের জন্য বেরিয়ে যেতে হয়, আলাদাই খেলা হচ্ছে। আচ্ছা শোন এটা দেখি না করে দিও, হ্যাঁ ঠিক আছে মানডে তো স্যারের সাথে দেখা করি। तो ऐसा होता है S3 बकेट, सो इट्स अ बकेट, ओके। ये बकेट के अंदर आपका सारा डेटा रहता है, जो डेटा आप डालते हैं, ओके क्लियर? उसके बाद है इट इज द सेम एज फोल्डर्स। अच्छा इसके बारे में बोल रहा है कि बकेट क्या है, इट्स अ लाइक अ फोल्डर एंड डायरेक्टरीज, ओके। तो इसको इसी पॉइंट के साथ लिखो, ये अलग पॉइंट नहीं होगा। अच्छा S3 bucket no S3 bucket is a text object. We cannot create a bucket inside a bucket. It means nesting bucket is not supported. बोलते बार बेटा
স্যার একটা স্টোরেজ ফোল্ডারের ভিতরে একটা স্টোরেজ আমরা নতুন করে ক্রিয়েট করতে পারবো না, নেক্সটিং বাকেট ইজ নট সাপোর্টেড। वेरी गुड। और किसी को समझ में आया ये पॉइंट? बोलो सर वही तो बोल रहे बोलो। सर हम जो और एक बकेट बना रहे हैं उसके अंदर एक बकेट नहीं रखते। वेरी गुड। तो ये टर्म यूज करना है, फोल्डर नहीं बकेट। फोल्डर रख सकते हैं हम लोग, चाहे तो एक बकेट के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए बकेट को फोल्डर बोल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली बकेट इज नॉट अ फोल्डर, बकेट इज अ कंटेनर जहाँ पे आपका डेटा डेटा फाइल तो डॉक्यूमेंट। एक बकेट के अंदर आप दूसरा बकेट नहीं डाल सकते, नहीं बना सकते। सब बकेट नहीं क्रिएट होगा। आप ये फ्लैट आपका फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब ये आपका अगर बकेट है तो आपको अगर और भी बकेट बनाना है तो आपको अलग से बकेट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आप बकेट नहीं बना सकते। हाँ, आप इसके अंदर फोल्डर बना सकते हो, इसके अंदर आप फाइल बना सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन आप बकेट के अंदर बकेट क्रिएट नहीं कर सकते। इट डज नॉट सपोर्ट नेस्टेड क्लियर? इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद का पॉइंट निशांत। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 5 TB। हाँ, एक बकेट का कितना कैपेसिटी हो सकता है? 5 TB तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक बकेट का कैपेसिटी कितना हो सकता है? 5 TB। काफी होता है 5 TB, है ना? बकेट ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बकेट का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। एग्जांपल देके समझा सकते हो? ओनर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर? सर जो बकेट का क्रिएटर है, तो बकेट जो बनाया है, जैसे मेरा अकाउंट था AWS का, मैं बकेट क्रिएट किया तो मैं उस बकेट का ओनर हूँ, है ना? आपका भी AWS में अकाउंट है, मुझे लगा कि नहीं मैं आपको ओनर बना दूँ उसे S3 बकेट का, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। जो ओनर है सो ओनर ही रहेगा। क्लियर? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। लास्ट पॉइंट, Safe limit of S3 bucket is 100 but can be increased by request list. क्या मतलब है इसका? S3 बकेट का सेफ लिमिट 100 रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पे बढ़ जाता है। क्या मतलब क्या है इसका? सेफ लिमिट मतलब वही। सेफ लिमिट मतलब कितना सारा बकेट आप बना सकते हो, 100। उसका लिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका AWS अकाउंट है, आप जितना भी बकेट बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कितना बना सकते हो? मैक्सिमम 100, बाय डिफॉल्ट 100 ही बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन आपका अगर रिक्वायरमेंट रहा बनाने का तो आप AWS को मेल करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, हो सकता है कि वो आपको एक्सेस दे दे, उसके लिए चार्जेस लगेगा अलग से। 100 के बाद जो हम लगाना चाहेंगे, 1 लगा 2 लगा तो उसके बाद 4 लगा देंगे। मतलब कितना सारा बाल्टी आप लगाओ बकेट मतलब नहीं, आप मल्टीपल बकेट बना सकते हो। बोले बकेट एक ही रहेगा, फोल्डर उसमें बना नहीं, मैं बोला एक बकेट के अंदर दूसरा बकेट नहीं बन सकता। देखो, एक बकेट के अंदर आप और उसके अंदर एक बकेट नहीं बना सकते। आपको अगर बकेट बनाना है तो अलग से बकेट बनेगा। जैसे ये आप बकेट B बनाए, B1, इसके अंदर आप B2 नहीं बना सकते। आपको बकेट अगर बनाना है दोबारा से तो B2 आपको अलग से बनाना पड़ेगा। समझ में? क्लियर है? प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ रूल्स है S3 बकेट के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। S3 बकेट बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, कुछ तो क्या नाम देना पड़ेगा S3 बकेट का? बिकॉज आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, एंड दैट नेम शुड बी यूनिक। तो इसमें कुछ कंडीशंस है नेम डालने में, तो क्या कंडीशंस है, क्या तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल पूछ सकता है S3 बकेट में मैं क्या कोई नाम स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? S3 बकेट, एक S3 बकेट के अंदर दूसरा S3 बकेट बना सकते हैं? नहीं, अभी बोल पा रहे हो, लेकिन 1 महीने बाद ये क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा क्या, याद रहेगा क्या? तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो यू शुड राइट डाउन द पॉइंट्स ना। जैसे आप घर में देखो, पढ़ो,
कॉपी निकालो, असाइनमेंट निकालो, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ चलो ये सब हम जानते हैं पढ़े हैं। नहीं लिखोगे तो फिर याद भी नहीं आएगा, याद भी नहीं आएगा। सैटरडे तक स्टोरेज तक ही असाइनमेंट रखे। तो तुम लोगों को तो होली का छुट्टी नहीं है? फ्राइडे तो ऑफ है वैसे भी। रियली सर? फ्राइडे क्लास भी काउंट है। हाँ फ्राइडे को छुट्टी है ना। हाँ हम लोग तो फ्राइडे को ऐसी छुट्टी रहता है। हम लोग तो छुट्टी ही। तब सैटरडे सर? सैटरडे को किस चीज? खाली सैटरडे को क्यों नहीं? सैटरडे को थोड़ी छुट्टी हमारे एখানে होली है तो सर है। सैटरडे तो मेरा ऐसे ही वीक ऑफ है सर, हम सोचे थे आने के लिए। हाँ आ जा। तो सैटरडे हमारे एখানে होली है। ठीक है, जो होली खेले आज में पाएंगे तो सर प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना सर? पाएंगे। और लिख रहे थे ना। पहला पॉइंट है ग्लोबली यूनिक, मतलब ये भी पॉइंट एक नोट करने वाली चीज है, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए स्त्री का नाम। मतलब स्त्री का नेम कोई डाल के रखा है निशान, वो नाम अगर डला गया तो आप दुनिया में कोई भी समझ लो डाल दिया, यूएस में, चाइना में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कोई निशान नाम को यूज कर लिया तो आप कोलकाता में बैठ के निशान नाम को यूज इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जैसे इंस्टाग्राम का यूजर नेम सेम। तो यूनिक नेम देना पड़ेगा कुछ है ना, डिफरेंट देना होगा। सर बोल रहे हैं कि स्टोरेज का जो है ये 4 टाइप्स जो है, तो क्या इसका मतलब अलग अलग करके माइंड में बनाए कि एक ही में बना लें? क्योंकि S3 तो बहुत लंबा है। नहीं एक ही में बन जाएगा, स्टोरेज का एक चैप्टर का माइंड में बनेगा। पूरा लिखने का असाइनमेंट नहीं बन जाएगा माइंड में? दोबारा लिखना पड़ेगा यार। ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ये हम लोग बाद में सीखेंगे। ये आज टाइम कितना बचा हुआ है? ज्यादा टाइम नहीं है, बस इतना ही रखते हैं आज। 10 पॉइंट ये लिखते हैं, ठीक है। सर सैटरडे क्लास होगा कि नहीं होगा सर? हाँ होगा। ओके सर। अच्छा मंडे को इफ्तार पार्टी है। सर सुने सबके लिए, सब ओपन है सबके लिए, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो इफ्तार पार्टी में कर सकते हो। सुयुक्ता मैडम को दे देना जिसको करना है कंट्रीब्यूशन, और 350 वाले मुझे दे देना। ল্যাব 3 তে নেবেন কি 11:30 ক্লাসটা? না এখানে নেব। ল্যাব 3 তে আমাকে 7 দেওয়া ছিল কৃষ্ণেন্দু স্যারের ব্যাচটা, তো ল্যাব 3 তেই বসছি না, অসুবিধা হয়। और इसके बाद ये बस बीसीए का बोलो।
हो गया डन? नो सर। 10 पॉइंट है तो ज्यादा नहीं है। बोल रही हूँ कि कोई इसराफुल जैसा कैंडिडेट है? हाँ है ना। उसका एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस वाला कम एक्सपीरियंस लेकिन नॉलेज थोड़ा। कहाँ के लिए? यही कोलकाता ही, उसी में इसराफिल जिसमें काम कर रहा है उसमें साइबर नेट आईटी। कोलकाता के लिए वाजिद को भेजिए ना, तो एक्सपीरियंस है। वाजिद अली, इसका पापा आया तो पोटेंशियल करेगा। वो ड्रॉप आउट हुआ था ना, वापस रीरेज किया ना, अभी कर रहा है। कहाँ है? आया है? नहीं आएगा। आएगा अपनी क्लास में। और कोई याद आ रहा है ना। एक्सपीरियंस यहाँ पे किसी का है क्या? वर्किंग एक्सपीरियंस हमारे बैच में अनस इनफाल का तो हो गया था। आ गया तो वापस हाँ है ना? उसका एक्सपीरियंस है, वो तो 12th क्लास में है। नहीं वो जॉब करता था ना सर 1 महीना भी तो नहीं किया। 1 महीना भी नहीं। हेलो यस सर। हाँ यस सर किया सर 1.5 महीने किया। कौन बोल रहे हो? अनस? यस सर अनस बोल रहा हूँ। कितना दिन का एक्सपीरियंस है तुम्हारा? अप्रॉक्स 2 मंथ है सर। 2 मंथ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। 6 मंथ का या तो 1 ईयर। बट सर उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया था 2 ही मंथ में। हाँ वो तो है, लेकिन कंपनी वो 2 मंथ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता, उससे तुम्हारा नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। कम से कम किसी भी कंपनी में 6 महीने या 1 साल काम करके छोड़ना चाहिए। 2 महीने में छोड़ दोगे ना तो कंपनी सोचेगा कि तुम्हारे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। मैम कंपनी का नाम क्या बोले? नाम कहाँ बोले? कोलकाता में बोले। क्या काम है? डेस्कटॉप लेवल का काम होगा। हो गया, लिख लिए तो डन हो गया ना? सर हो गया। तुम्हें एथोस तो आने लगा क्या? हो गया सर ये। चलो हो गया ना? अच्छा फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? हाँ इसका मतलब ये है कि आप जब S3 बकेट का नाम डालोगे वो नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए मतलब वो नाम डुप्लीकेट या फिर मैच नहीं होना चाहिए। कोई नाम किसी S3 बकेट में नाम डाल दिया है, पहले से जो नाम डाल दिया है उस नाम को वापस मैं अगर यूज करना चाहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। यूनिक नेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? बकेट नेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। यस, चेंज नहीं हो सकता। आप एक बार अगर बकेट नेम डाल दिया, बकेट क्रिएट कर लिए, तो आपको लगता है कि वापस रीनेम करोगे वो पॉसिबल नहीं है। काफी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ अ बकेट इज डिलीटेड द नेम बिकम अवेलेबल। हां उसका नेम रह ही जाता है। बनाए कोई चीज और डिलीट हो गया तब दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। हां बकेट नेम कैन नॉट बी ना क्या? कैन बी हाँ तो आप 2 कैरेक्टर का या 1 कैरेक्टर का बकेट नेम नहीं दे सकते। हाँ 3 से ज्यादा कैरेक्टर का होना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या कंडीशन है? उसके बाद कंडीशन which is used to access the bucket। तो URL का पार्ट होता है। हाँ जैसे आप कोई बकेट क्रिएट किए उसको अगर पब्लिकली शेयर किए तो इस तरह से बकेट आपका क्रिएट होगा HTTPS उस तरह से। उसके बाद आपका URL होगा, उसके बाद amazon.com होगा, उसके बाद स्लैश देकर के बकेट नेम आएगा। यहाँ पे आपका बकेट नेम आएगा। ठीक है ऐसा है।
इट कैन नॉट बी कंटेन एनी स्पेस। बकेट नेम में कोई स्पेस नहीं हो सकता। जैसे कोई बकेट नेम में डाला है निशांत कुमार, तो निशांत अलग लिखा है, कुमार अलग लिखा है, स्पेस दिया बीच में, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ दे सकते हो, निशांत कुमार एक साथ लिख सकते हो, निशांत डॉट कुमार लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन स्पेस यूज नहीं कर सकते। ऐसे भी तो कुमार निशांत, हाँ कुमार निशांत भी हो सकता है, लेकिन कुमार और निशांत के बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होता। हाँ बिकॉज ये यूआरएल में आएगा ना, यूआरएल में कोई स्पेस नहीं होता। Bucket names can contain lowercase numeric special characters but does not contain अपर केस। हाँ ये ध्यान रखना है कि कोई बकेट नेम डालना चाहता है इस तरह से, मैं बकेट नेम डालना चाहता हूँ ABC, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है ABC? क्योंकि सारा अपर केस है। अपर केस आप यूज नहीं कर सकते बकेट नेम का। आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ABC स्मॉल में। क्लियर? बकेट नेम में आप अपर केस यूज नहीं कर सकते। अच्छा उसके बाद क्या है लिमिटेशंस? Bucket name cannot be an IP एड्रेस। बकेट नेम कभी भी आपका IP एड्रेस नहीं हो सकता। मतलब IP एड्रेस समझ लो है मेरा ये, और मैं बकेट नेम में IP एड्रेस डाल दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। Each name must start with a lower case or a number। आप बकेट नेम में कभी भी मतलब लोअर केस या नंबर से बोलना स्टार्ट करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि बकेट नेम में तो अपर केस यूज कर नहीं सकते, तो बकेट नेम में बचा स्पेशल कैरेक्टर्स। इसे स्पेशल कैरेक्टर्स मैं हाइफन यूज कर रहा हूँ और बकेट नेम डाल दिया हाइफन ABC, हो सकता है? बकेट नेम में डाला, पहले हाइफन लिखा, उसके बाद लिखा ABC, हो सकता है? नो सर। नहीं सर, नहीं हो सकता है। लोअर का नंबर से स्टार्ट होगा सर। हाँ तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आपका कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए कुछ लोअर केस में, या फिर आपका नंबर होना चाहिए। नंबर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे यूज कर सकते हो? बीच में, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 1-ABC, ये हो सकता है, ये सही नाम है। क्लियर? मैं ऐसा नाम डाला जैसे मैं डाल दिया, मेरे को बताना ये सही है या नहीं। हाँ 0-1-AB G-1 हो सकता है ये नाम? क्यों नहीं हो सकता? सर इसमें अपर केस है ना, जी। और कोई रीजन है? और तो कोई रीजन नहीं। और किसी को लग रहा है कोई रीजन है? जीरो है, ये है, जैसे एक साथ रहता ना, एक साथ ही सब है, कोई स्पेस नहीं है। इस संख्या सॉरी 01 आ जा रहा है, फिर उसके बाद अल्फाबेट में नहीं होगा। तो 10 तो क्या होता है? होगा, देखो यहाँ पे तो आप लोग खुद लिखे हो, कहाँ पे लिखो? each name must start either the lower case or with a number। तो नंबर तो है, 0 is a number, 0 तो नंबर ही है ना। वो नहीं लिखा मैं, 0 लिखा। अगर वो होता वो तो नहीं होता। कैपिटल वो समझे हो तो सही बोले हो, अगर 0 समझ के बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। नंबर से स्टार्ट हो सकता है या फिर लोअर केस से स्टार्ट हो सकता है। क्यों नहीं होगा? एक ही रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक कैपिटल लेटर है जी, इसके वजह से ये नाम गलत है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है। मैं अगर स्मॉल में जी लिखता तो ये नाम सही है। क्लियर? किसी का डाउट है यहाँ पे? अच्छा, बाय डिफॉल्ट बकेट एक्सेस इज मेड प्राइवेट। बकेट जब भी आप क्रिएट करोगे तो प्राइवेट ही होगा, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक आप खुद पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करेंगे। क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ बकेट नेमिंग रूल बोल सकते हैं। नेमिंग का कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना है। इस जगह से काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
या फिर S3 बकेट से क्वेश्चन आ सकता है कि S3 का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, एक अकाउंट में कितना सारा S3 आप बकेट बना सकते हो मैक्सिमम। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही सकता है। S3 में क्या मैं अपना नाम S3 का नाम मैं डालना चाहता हूँ, कैपिटल लेटर में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैं S3 बकेट का नाम स्टार्ट करता हूँ स्पेसिफिक कैरेक्टर से, हो सकता है नहीं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So these are the basic criteria to create a bucket and naming the bucket. तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा, रूल मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे चल के S3 का लाइफ साइकिल क्या है ना, कैसे वेबसाइट्स क्रिएट होता है, वर्जनिंग क्या होता है, और S3 ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सारा कुछ S3 के बारे में और डिटेल्स में जानना है हम लोगों को। ठीक है, काफी कुछ है S3 में। S3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। S3 खत्म करने के बाद जाएंगे EBS में और EFS में। भी अब बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज का सेशन इधर ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर ठीक है सर। ओके, ठीक है। So bye everyone. Bye. Thank you, sir. सर